So let's now look at designing your website. Now, I'm not going to be doing everything. It's not possible for me to teach you everything in this. Like I said, it is more of a roadmap which you can utilize and do things on your own. Okay, so the first thing about designing your website is choosing your theme. So for example, here we chose a template or the theme as it is called. And we obviously chose one of the free ones that was available, and that sort of gets us started to see what it might look like. But you may have a different idea, and the first thing that you do is choose your theme for the e-commerce website. When you are learning, I recommend that you choose the storefront theme, as it is called. So there's a theme called WooCommerce Storefront. Stick with that. It's a very plain and simple vanilla, बहुत ही सिंपल सी थीम है, उसमें कुछ खास ऐसे फ्रिल्स नहीं है, लेकिन वो फंक्शनल है और वो चलेगी आपके लिए. जब आप थीम चूज कर रहे हैं, मेरे in my learning, I have two main rules, just two thumb rules that you should always keep in mind. One, performance trumps fancy interface. तो जब आप थीम चूज कर रहे होंगे तो आपको बहुत अच्छी सुंदर टेम्पलेट्स दिखेंगे. कहीं पे ये घूम रहा है, कुछ ये उड़ के आ रहा है, कुछ वहां रंग बिरंगी चीजें हैं. Many fancy templates, many fancy things you will see. Your home page will be like so full of many things. In my experience of having actually run it, and I also started with a really fancy theme. Now my website actually looks relatively simple. उसमें कुछ खास है नहीं. But I did start with a very complicated theme and this thing. But at the end of the day, performance of the website overcomes, basically triumphs fancy interface. अगर आपको परफॉर्मेंस और इंटरफेस में चूज करना है तो आप परफॉर्मेंस चूज करिए, क्योंकि जो आपका कस्टमर आएगा वो अगर आपका वेबसाइट स्लो है तो वो नहीं रुकेगा, ज्यादा देर चला जाएगा. तो बहुत जरूरी है कि आप परफॉर्मेंस वाली थीम जो क्विक परफॉर्म करती हो वो थीम चूज करिए, rather than interface theme which gives you a lot of features and fancy things. तो अगर कभी ये चॉइस करनी पड़े, और वो चॉइस आपको करनी पड़ेगी क्योंकि आप जब शुरू करेंगे तो आप जो चीज ज्यादा अच्छी दिखती है वो लेंगे, बट चूज परफॉर्मेंस ओवर फैंसी इंटरफेस ऑलवेज. एंड माय अदर रूल इज मोबाइल ट्रायम्फ्स डेस्कटॉप. तो जब आप डिजाइन कर रहे हैं, मोस्टली जो हम सब डिजाइन करेंगे, हम लैपटॉप डेस्कटॉप पे डिजाइन करेंगे, बड़ी स्क्रीन पे. जैसे अभी भी हम आई एम टेकिंग दिस webinar from a desktop. Some of you and many of you probably are watching it on your mobile, for all I know. Now, when you are creating a e-commerce website, always remember mobile triumphs desktop. तो जब आप डिजाइन कर रहे हो और आपको डेस्कटॉप पे देखो कितनी अच्छी लग रही है, सुंदर है, ये है वो है, लेकिन वो मोबाइल पे ठीक नहीं चलती. अगर वो मोबाइल पे ठीक नहीं चलती तो उस थीम को आप मत लीजिए. Do not take a theme which does not work well on mobile. Only take a theme which works well on mobile. याद रखिए, 80 to 90% of your website traffic will come on mobile, will come through mobile. I have had months in which I have had 90+%, 92, 93% traffic which comes through mobile. In the worst months, I had 83% traffic that was coming through mobile. On an average, 85 to 90% of my traffic, and I have decent, 15-20,000 users every month, and 80,000 page views and so on, and it's growing. It comes through mobile. So again, whatever theme that you are choosing, always look at whether it is mobile friendly, whether it is responsive,
and how well does it look in the mobile. So if I look at this theme, ये मतलब यहाँ पे ये चीजें हैं, देखा मेरा फोन नंबर आ रहा है, ये आ रहा है, वो आ रहा है, मैं इसको ये मोबाइल में कैसे लगती है, when I click on right click on the website and click on inspect, तो ये मुझे अगर मैं यहाँ पे चूज करता हूं कि शो मी हाउ इट लुक्स इन पिक्सेल या गैलेक्सी S5, तो इट विल शो मी हाउ दिस थीम लुक्स इन मोबाइल, एंड देन आई कैन सी ओके हाँ ये मोबाइल में देखो ये कट रहा है, तो ये शायद इतनी थीम इतनी अच्छी नहीं है। ठीक है, तो जो भी आप थीम सेलेक्ट करेंगे वो हमेशा याद रखिए मोबाइल में ठीक चलनी चाहिए। ये आप जरूर देखिएगा कि आप मोबाइल फ्रेंडली आपकी थीम होनी चाहिए। Does it require another interface, studio interface to develop in mobile, or you can use a minor tweak and use the same WordPress for making the mobile site as well? And do we need to store the two separately, or is it one source code? No, it is only one source code. It is basically WordPress is what is called responsive design. Responsive design का मतलब ये होता है कि वो अपने आप को एडजस्ट करेगा डिपेंडिंग ऑन द स्क्रीन साइज। अगर मेरा स्क्रीन साइज बड़ा है तो वो मुझे अलग तरह से चीजें दिखाएगा, अगर मेरा स्क्रीन साइज छोटा है तो वो मुझे अलग तरह से चीजें दिखाएगा। जो वेबसाइट्स, और ये वर्डप्रेस तो बाय डिजाइन है, लेकिन सारी थीम्स बाय डिजाइन रिस्पॉन्सिव नहीं होती। तो इसीलिए जो थीम जब आप सेलेक्ट करेंगे, तो जब आप थीम के बारे में पढ़ेंगे तो ये जरूर पढ़िएगा कि क्या ये रिस्पॉन्सिव है या नहीं। मतलब कि वही थीम वही डिजाइन जब वेबसाइट जब मोबाइल पे चलेगा तो कैसा लगेगा वो जरूरी है। यहाँ पे मैं ये मोबाइल पे करता हूं तो ये वेबसाइट रिस्पॉन्सिव है, ये थीम रिस्पॉन्सिव है। तो ये मोबाइल का, जैसे अगर कोई यूजर मोबाइल में आपका वेबसाइट देखेगा मोबाइल के ब्राउजर में तो उसको ऐसे दिखेगा, और बिल्कुल ठीक है, कुछ कट नहीं रहा वगैरह वगैरह। तो ये इस थीम को रिस्पॉन्सिव थीम माना जाएगा। और अगर आपको कोई थीम मिलती है, जब आप थीम सेलेक्ट कर रहे हो, अगर वो मोबाइल में ज्यादा अच्छी दिखती है, ब्राउजर मतलब डेस्कटॉप पे थोड़ी आपको लग रहा है कि यार नहीं ये तो ठीक नहीं चल रहा, तो भी आप उसको सिलेक्ट कर लो, क्योंकि आपका 80-90% ट्रैफिक मोबाइल से ही आएगा। Right. And this is mobile browser. We are still not talking mobile app. No, I am not talking about mobile app. Mobile app browser. तो वो एक और ही मतलब कहानी है उसकी। Right. वो कहानी में के लिए कंप्लीटली और अलग वेबिनार लेना पड़ेगा, और उसके लिए और बहुत कहानी है। मतलब इनिशियली आप डोंट वरी अबाउट कि मुझे मोबाइल ऐप बनानी है, आप अपना ब्राउजर का बेस बनाओ, लेकिन मोबाइल पे चलना चाहिए वो बनाओ आप। क्योंकि मोबाइल ऐप करने में अलग दिक्कतें आती हैं और मोबाइल ऐप करने में अलग चैलेंजेस आते हैं, क्योंकि लोग मोबाइल ऐप्स डाउनलोड नहीं करना पसंद करते। बहुत ज्यादा लोग मोबाइल ऐप्स डाउनलोड नहीं करना पसंद करते, जगह खत्म हो जाती है, स्पेस खत्म हो जाता है मोबाइल में, ये वो दुनिया भर की चीजें होती हैं। तो जरूरी नहीं है कि आपको मोबाइल ऐप चाहिए हो अपने ई कॉमर्स वेबसाइट के साथ। अगर आपकी वेबसाइट मोबाइल ब्राउजर पे ठीक चल रही है तो चलेगा। Then you have, like the hosting, you have two options. There are many free themes that are available, and there are paid themes that are available. The advantage of free themes that are very important, they are free. You don't have to pay anything. Again, very good thing to start to learn. But as you start to develop professional e-commerce website, or even if you start to develop professional e-commerce website for yourself or for anybody else, there are advantages of taking paid theme. कोई मतलब 5-6 हजार रुपए खर्चने में बुराई नहीं है अगर आपको अच्छी खासी थीम मिलती है। टिपिकली पेड थीम्स में फीचर्स ज्यादा होते हैं, आप ज्यादा चीजें कस्टमाइज कर सकते हैं, कलर्स, फॉन्ट्स, ये वो, you can typically customize more things in a paid theme. You get support कि अगर आप कहीं if you get stuck somewhere,
कि मुझे ये नहीं आ रहा कैसे करना है, या थीम में कोई एरर है या कुछ भी है, तो आपको सपोर्ट आप जो जिस थीम ने जो भी जिसने डेवलप किया है उससे सपोर्ट मिल सकता है। और टिपिकली जैसे वो 1 साल तक फ्री अपग्रेड्स देते हैं, तो उसके बीच में अगर कोई भी अपग्रेड आता है उस थीम का, then you get that available also, which may or may not be available for free in the free website, in the free themes. So like I said, I mean, there are advantages and disadvantages. There is, you can definitely start with a free theme, but there's no harm in actually spending some time and energy and money in getting a good theme. Hello, sir. Huh. Sir, if I want to develop my own theme, so how can I develop it? If you want to develop your own theme? Yes, sir. तो उसके लिए टिपिकली आपको PHP वगैरह आना चाहिए, प्रोग्रामिंग आना चाहिए आपको। और क्योंकि उस थीम के बड़े सारे एलिमेंट्स होते हैं और उस थीम में बड़े सारे पेजेस होते हैं, और उस थीम वो थीम वर्डप्रेस इंटरफेस के साथ कैसे चलेगी वो आपको आना चाहिए, तो उसके लिए प्रोग्रामिंग चाहिए आपको। So should we prefer like the paid themes mostly? That's what I'm said कि जब आप शुरू कर रहे हो, when you are learning for it, you can go with a free theme, there is no problem with that. But if you want slightly professional theme, you know, a good looking professional theme which is optimized, which is responsive, where you can get upgrades, where you can get support, where you can get more features, then definitely paid theme is preferred. Okay, sir. Yeah. Okay. Once you've selected your theme, then obviously you have to go about in setting up your home page. And in the home page, you basically set up, you know, header, footer, sections, sliders, and so on. So header is typically where you add your website logo, add contact information. Typically, mostly the theme will take care of it. एक cart होगा, my account होगा, wish list होगा, depending on, you know, what you have got. Like for example, this theme doesn't have a wish list, but it does have the search, it has cart, it has contact information. This is where you can actually change your logo and name. Let's go to the back end of this particular website. And once we go into the back end of the website, you can actually make modifications to the, you know, the header, footer, and so on and so forth. Okay, while we do that, but जब आप अपना अगर आप अपना e-commerce वेबसाइट की सोच रहे हैं, तो एक तो उसमें you would have thought of a good name for it. नाम अच्छा होना चाहिए, और एक अच्छा सा लोगो भी आप बनाइए या सोचिए कि कैसे होगा, क्योंकि वो आपकी आइडेंटिटी है। जैसे ये आ गया हमारा WooCommerce, ये सारा वर्डप्रेस एडमिनिस्ट्रेशन का बैकएंड का फीचर, and I think if many of you guys are from an NIIT Yuva Jyoti course, then I'm sure some of you may already have seen and be familiar with this kind of an interface. And this is where I say I go to appearance and I click on customize, and this is where I can customize my theme. So many things can happen. You basically look at your site identity. I can say Sunshine Shop. So this is, you know, it kind of comes like this. Automatically, you can see how the changes are happening on this thing. I can click on a logo and I can select a logo. If I select a logo, then it will replace this name with the logo. I don't have the one, I don't have anything ready at this point in time for this webinar, but if you do that, then you can do it.
This is where you select your header. I want a header like this, or I want a header like the name to be here, or I want something like this, or I want the menu like this and just the name here. So many things you can change. You can change the color, you can change the background color, and so on. So relatively simple. Once you are done, you just say publish, and automatically when I go to shop.lead.in, and we'll come back to why it is showing like this, but for the minute, this is also a critical element of getting your own website up and running. So you basically have your Sunshine Shop. So again, your name has changed and so on and so forth. So you can you basically should look at designing your header section correctly and properly. इसमें एक ये आइकन आता है साइट आइडेंटिटी में. जब आप लोगो लगाएंगे तो यहाँ ये जो आइकन आ रहा है इसके साथ, ये जैसे ये सनशाइन शॉप के साथ ये वर्डप्रेस का आइकन आ रहा है, ये चेंज हो जाएगा. जैसे अगर आप बिड क्यूरियस पे जाएंगे तो ये बिड क्यूरियस का आइकन आ रहा है, संकलन में जाएंगे तो संकलन का आइकन आ रहा है. तो आपको ये छोटी छोटी चीजें भी ध्यान में रखनी होंगी. The next thing typically is the footer section. So your footer section is this section. Typically इसमें दो या तीन कॉलम्स होते हैं और एक या आखिरी में कॉलम होता है. डिपेंडिंग ऑन द थीम सबके साथ मतलब कुछ अलग होता है, लेकिन एज अ जेनेरिक गाइडलाइन द फुटर सेक्शन टिपिकली विल हैव योर सोशल लिंक्स. आपका एक वेबसाइट फेसबुक प्रेजेंस होगा, इंस्टाग्राम प्रेजेंस होगा, उस तरह से कुछ चीजें होंगी. उसमें कुछ क्विक लिंक्स होते हैं, जैसे ये सारे क्विक लिंक्स हैं कि भाई मैं डायरेक्टली होम गैलरी पे चला जाऊं. अगर आप ब्लॉग लगाएं, ब्लॉग पोस्ट करना चाहते हैं तो ब्लॉग कैन द most current blog posts can also come in the footer section. Contact address, information, and important links like usage policy, privacy policy, and all that also goes in the footer section. And then you think and design your homepage sections. Your sections being जैसे इसमें सिर्फ एक 3-4 सेक्शन है. इसमें एक इमेज आता है ओरिजिनल ओवरऑल. यहाँ पे शायद हम एक स्लाइडर डाल सकते थे. फिर इन्होंने एक सेक्शन दिया है शॉप ट्रेंड्स में कुछ जा सकते हैं. फिर एक ये सेक्शन है कि इमेज लगाया है, और फिर उसके बाद उन्होंने कुछ शॉप लगाए हैं. सिमिलरली अगर मैं अपने बिड क्यूरियोस में जाता हूं तो मेरे सेक्शंस हैं, एक स्लाइडर है, एक ऑप्शंस आता है, फिर ये कैटेगरीज है, मेरे कॉइन्स एंड नोट्स हैं, फिलेटली है, आर्ट है, ये अलग अलग कैटेगरीज हैं. ब्लॉग पोस्ट लगाया है मैंने, ऑन सेल, फीचर्ड वगैरह वगैरह लगा सकता हूं. तो जब आप ये डिजाइन करके सोच के करेंगे तब जब आप होम पेज डिजाइन कर रहे हैं तो यू विल हैव टू कीप इन माइंड कि आप किसके लिए डिजाइन कर रहे हैं. कुछ यूजर्स हैं जो कैजुअल ब्राउजर्स हैं, विंडो शॉपर, मुझे नहीं पता क्या है, देखें जरा ये एक नया वेबसाइट है, देखें क्या क्या बिकता है यहाँ पे. ये कैजुअल ब्राउजर्स हैं, इन्हें नहीं पता कि वो खरीदेंगे या नहीं खरीदेंगे. कुछ अच्छा लगा तो शायद खरीद लेंगे, नहीं अच्छा लगा तो नहीं खरीदेंगे, और इनके दिमाग में कुछ है नहीं. दे डोंट हैव एनीथिंग इन माइंड, दे आर नॉट लुकिंग फॉर एनीथिंग. But at the same time, there are also targeted buyers who know what they're looking for. So on my website, I get casual browsers, window shoppers, as I call them, who have seen my, seen about my website somewhere, read about it, or clicked on my ad, and they've come here and saying, "Acha, ye dekho, yahan pe ye bikta hai, वगैरह वगैरह." They'll kind of browse through it. But at the same time, I have very specific clientele. I have repeat customers who are looking for a particular coin or a particular stamp or a particular this thing. So then they are my targeted buyers. So the way you design your website needs to take care of both. Targeted buyers need to be able to get to what they are looking for easily, while browsers should be able to also get a feel of
कि आपके वेबसाइट पे क्या क्या है। तो इस तरह से आप अपना इन दोनों चीजों को रखते हुए आप डिजाइन करेंगे। सो आई हैव डिजाइन्ड इट लाइक दिस। सो माय कैजुअल बायर विंडो शॉपर कैन से, अच्छा ये इस तरह के कॉइन्स हैं, हाँ कुछ अच्छा लग रहा है, चलो मैं व्यू ऑल कर देता हूँ। कॉइन्स नहीं, ये देखता हूँ मैं, अच्छा ये अच्छा लग रहा है, ये अच्छा लग रहा है, एंड सो ऑन। वर्सेस आई हैव अ वेरी स्पेसिफिक टारगेटेड बायर्स हु दे गो इनटू, मुझे कवर्स और पोस्ट कार्ड्स चाहिए और उसमें मुझे फर्स्ट डे कवर्स चाहिए, तो कवर्स एंड पोस्ट कार्ड के बाद मैं फर्स्ट डे कवर चूज कर लूंगा। तो फिर मुझे डायरेक्टली मैं वहां पहुंच जाऊंगा कि हाँ मुझे ये फर्स्ट डे कवर्स ढूंढने हैं। तो इसमें आपका वेबसाइट नीड्स टू बी टेकन केयर ऑफ फॉर बोथ casual buyers, casual shoppers as well as targeted buyers. And you will use your home page to push the specific products. आपको किस तरह के प्रोडक्ट ज्यादा बेचने हैं, तो हो सकता है आपके पास कोई एक चीज के 100 पीस पड़े हैं और कोई एक चीज का एक पीस पड़ा है, कुछ चीजें ज्यादा महंगी हैं, कुछ चीजें सस्ती हैं, तो उनको आप वो फीचर्ड प्रोडक्ट्स बना सकते हैं। एक और चीज है फास्ट सेलिंग प्रोडक्ट्स है, ऑन सेल प्रोडक्ट्स की अलग कैटेगरी बन सकती है। तो डिपेंडिंग ऑन कि आप किस तरह से करना चाहते हैं, ये आप अपना होम पेज इस तरह से डिजाइन करेंगे। यहां पे भी जैसे मैंने पहले कहा था, चूज परफॉर्मेंस ओवर फैंसी डिजाइन। तो परफॉर्मेंस अगर बेटर है, अगर आपकी जल्दी से पेज लोड हो रहा है तो वो बेटर है। जब मैंने ये वेबसाइट शुरू किया था तो मेरे पास यहाँ पे होम पेज पे एक बहुत ही फैंसी स्लाइडर था जिसमें मैं बहुत कुछ चीजें कर सकता था, अलग अलग प्रोडक्ट दिखा रहा था स्लाइडर्स में और वो बहुत चीजें चल रहा था, लेकिन उसकी वजह से मेरा वेबसाइट बहुत स्लो था। I mean my website was so slow, people were just not even waiting for the whole page to load, they were just going away। 2 सेकंड 4 सेकंड में नहीं खुला तो वो चले जाते थे। तो इसलिए देन आई हैड टू रिमूव दैट, जो वैसे दिखने में बहुत अच्छी थी, फंक्शनैलिटी भी बहुत अच्छी थी, लेकिन वो इतना स्लो था तो मैंने उसको छोड़ दिया। सो कीप दैट इन माइंड। एंड एज यू start learning WooCommerce, WooCommerce has these short codes which is basically like macros कह लो उनको, मतलब बिना प्रोग्रामिंग के वो आपको दिखा देगा। आपको जैसे अगर आपको फीचर्ड प्रोडक्ट्स डालने हैं तो बिना प्रोग्रामिंग के अगर आप एक शॉर्ट कोड लिखेंगे तो वो फीचर्ड प्रोग्रामिंग डाल देगा। उसमें दिखा दो मुझे फीचर्ड प्रोडक्ट्स चाहिए, 8 प्रोडक्ट्स चाहिए, 4-4 के रो में चाहिए, कॉलम में चाहिए, और बेसिकली असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में जो नए हैं वो पहले दिखाओ। तो ये शॉर्ट कोड से आप कर सकते हैं, सीख सकते हैं। तो it will be useful to invest time in learning these WooCommerce short codes. Sliders are useful things. So again, choose a light slider. I am right now using Smart Slider. इस वक्त अभी मेरे पास स्लाइडर नहीं है, लेकिन जैसे ये इस संकलन आर्ट गैलरी में स्लाइडर है, जो बेसिकली एक एक इमेज आता जाएगा और मूव करता जाएगा। ये वाला जो चीज है ना, ये स्लाइडर है, इसको स्लाइडर कहते हैं। तो अच्छा है, यूजफुल है, बट यूज अ लाइट स्लाइडर एंड you can use the slider image to highlight what your website is all about, USPs about the website, or even new products and so on and so forth. So again, one of the critical elements of designing the website. Then you will, what I am calling setting up user engagement elements, but menus है यहाँ पे, जैसे ये मेन्यूज हैं, होम डेकोर, किचन, ये इस तरह से, और इसमें ऑप्शंस में ऑल ऑनगोइंग ऑप्शंस, ये सब मेन्यूज हैं, मेन्यू और सब मेन्यू हैं। तो ये यूजर एंगेजमेंट फीचर्स हैं। और जैसे मैंने यहाँ पे एक स्टोर पे क्लिक किया तो उस पेज पे मैं बहुत सारे विजेट्स लगा सकता हूँ। आई कैन ऐड मेनी विजेट्स विच अलाउ मी टू डू दीज फिल्टर्स। फॉर एग्जाम्पल ये फिल्टर्स है या मोस्ट पॉपुलर है। यहाँ इसमें अगर मैं जाऊंगा तो
इसमें आएगा कि रिसेंटली एडेड, एंडिंग सून, जैसे ऑक्शंस हैं जो कौन सी एंडिंग सून है, ये न्यूली एडेड प्रोडक्ट्स हैं, ऑन सेल प्रोडक्ट्स हैं। तो ये चीजें आप एक्सपेरिमेंट करेंगे एंड सी व्हाट वर्क्स फॉर यू डिपेंडिंग ऑन व्हाट वेबसाइट यू आर क्रिएटिंग एंड व्हाट प्रोडक्ट्स यू हैव। सो you need to set up these user engagement elements also.